Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel Educational House. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं लीनियर अलजेब्रा। First point is, what is linear algebra? Second is applications. Of linear algebra. And third point is history. Fourth point is why we need this. चलिए अब हम अपने काम की तरफ स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा? Linear algebra is the branch of mathematics. Is the branch of mathematics where we can study the linear equations. Now here is a question is raised, what is linear equations? Equations that have maximum power 1, or variable power is 1, or exponent power is 1 is called linear equations. It is like this format: a1 x1 a2 x2 and an x and equal to 0. This is our linear equations. Here we can study the linear equations and we can discuss about the linear equations. And applications of linear algebra. What is applications? Physical applications. First of all, we can discuss this. First we study about matrices and vectors. Question is raised here, what is matrices and what is vectors? Arranging of arrays, columns, rows is called matrix. Like this, let A is equal to 1 2 4 5. This is 2 by 2 cross matrix. Here is we have two lines, two rows and two columns. So order of A is 2 by 2. It means it contains two rows and two columns. This is called matrix. Arranging of rows, columns is called matrix. And vector, what is vector? Denoted by arrow or bold or cap. And this is like this: 1 2. Single column and two rows. Single column and many rows. And generalization of this form is e power n x1 x2 up to x, and this is n times. It have one column and n times rows, and by one order and by one order. This is our vectors. And vectors are made, two or more vectors are added or right in this form, we get a matrix like this. v1 vector is 1 2 and v2 vector is 4 6. If we can write in this form,
like as a is equal to 1 2 4 6, then we can convert the two vectors into the matrix form. Convert from vector to matrix form, and we move vice versa. I think this concept is clear. Now we move about the applications about the linear algebra. Applications of linear algebra. Matrices in engineering, such as a line of springs. मैट्रिसेस, अब देखिए मैट्रिसेस हमारे पास कहाँ पे यूज़ होते हैं। मैट्रिसेस इंजीनियरिंग फील्ड में भी यूज़ होते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस बनती हैं। हम क्या बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन, फिर उनसे हमने एक मैट्रिक्स बना लिया और उसको हम सॉल्व आउट करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्राफ्स एंड नेटवर्क सच एज एनालाइजिंग ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, एक इक्वेशन है उसका ग्राफ भी बनता है। अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आप इक्वेशन में प्लग करें तो डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास हासिल होंगी, तो इससे हमारे पास एक ग्राफ बनता है। लाइक एज हियर वी कैन पुट एग्जाम्पल like as 4x1 is equal to I think 4x is equal to y. If we put x is equal to 0, then we get y is equal to 0. If x is equal to 1, y is equal to 4. X is equal to 2, y is equal to 8. X is equal to 3, y is equal to 12. Different values put, this is input and this is this is input, this is our input and this is our output. Next we move third one, applications. Matrices, populations and economics such as populations growth. अब जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, मुल्क किसी कोई भी मुल्क हो उसकी पॉपुलेशन वैसे भी बढ़ ही जाती है। तो अब पॉपुलेशन को गिनने के लिए या काउंट करने के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती हैं और हम फिर मैट्रिसेस का हेल्प लेते हैं, फिर मैट्रिसेस बना के उसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे अब जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उस हवाले से हमारे पास अब पॉपुलेशन इज इंक्रीज, तो लीनियर इक्वेशन भी इंक्रीज करेंगी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा की वजह से। मतलब हमने पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए लीनियर अलजेब्रा का हेल्प ली। उसके बाद है फूरियर सीरीज और लीनियर अलजेब्रा फॉर द फंक्शंस यूज वाइडली इन दी सिंगल प्रोसेसिंग। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा फॉर स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी सच एज लीस्ट squares for the regressions, complete graphs such as various translations, scanning and rotation of image। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि भी एक फ़ोटोग्राफ़र है या एक फ़ोटो एडिटर है जो मतलब फ़ोटो के साथ या पिक्चर के साथ चेंजिंग करता है या उसको रोटेट करता है। उसको ज़ाहिर सी बात है किसी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में रोटेट करेगा या उसके ऊपर चेंजिंग लाएगा या उसकी साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा, उसके ऊपर जितनी भी एडिटिंग होंगी, ये सारा किसकी मदद से कर रहा है, वो लीनियर अलजेब्रा की मदद से कर रहा है, वो लीनियर अलजेब्रा की ही एप्लीकेशन में आता है। अब सवाल वहीं स्टिल आता है कि व्हाट इज़ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा क्या है? लीनियर अलजेब्रा एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करना है। लीनियर अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट द ट्रूथ ऑफ इट इज़ दैट लीनियर अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ डेटा, मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स आर द लैंग्वेजेस ऑफ डेटा। अब जाहिर सी बात है, बार बार देखें, लीनियर अलजेब्रा हमारे पास क्या है, लैंग्वेजेस ऑफ
डाटा। अब मैंने जैसे आपको एक मिसाल दी है कि ये डाटा कौन सा हो सकता है, ये पॉपुलेशन का भी डाटा हो सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, फिर मैट्रिसेस बनाते हैं। अब वहाँ से हमारे पास मैट्रिसेस बन रहे होते हैं, फिर हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। अब ये मैट्रिसेस कैसे बनते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखें, हमारे पास एक इक्वेशन बनती है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे ए क्या होता है, हमारे पास एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स आ जाता है, और एक्स में हमारे पास इस तरह के एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, एंड वाई इज आवर सेकेंड कॉलम, एंड हियर वाई इज एनीथिंग, इट मे बी 0 और नॉट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अब सवाल उठता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब सवाल उठता है कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होते हैं। लाइक एज ए इज इक्वल, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0 एंड 10x1 प्लस 15x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास ये, अगर मैं इस तरह का मैट्रिक्स 1 5 10 15, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हमने क्या किया, इन इक्वेशंस के सारे कोफिशिएंट को उठा के मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया, 1 5 10 15 0 एंड 0, दिस इज़ आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या हुआ कि भी ये पहला कॉलम हमारा हो गया A1 वेक्टर का, ये दूसरा कॉलम हो गया A2 वेक्टर का, और ये लास्ट वाला क्या हो गया, B का, जिसको हम लिखते हैं AX इज इक्वल टू B। अभी बता गया हूँ, यानी कि A मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम A1 वेक्टर का हो गया, सेकंड कॉलम A2 वेक्टर का हो गया, थर्ड कॉलम A3 का, एंड इसी तरह सो ऑन फोर्थ। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है, हम उनको सॉल्व आउट करते हैं। इट इज़ ए रिलेटिंग यंग फील्ड ऑफ स्टडी हैविंग इनिशियली बीन फॉर्मलाइज्ड इन द 18। अब ये फील्ड हमारे पास 18th सेंचुरी में आई, यंग फील्ड है, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और लीनियर इक्वेशंस के अननोन वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने होते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, y इज इक्वल टू 4x1 इक्वेशन है, लाइक दिस इज ए लीनियर इक्वेशन दैट हैव डिस्क्राइब्स ए लाइन। अब जैसे सी बात, ये देखें, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, x की पावर मैक्सिमम 1 है, इससे ऊपर नहीं। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास, इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट वैल्यूज़ हासिल करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो वो कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन इज डिस्क्राइब ए लाइन ऑन 2 डायमेंशन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये 2 डायमेंशन होगा, क्योंकि हमने इसको ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास x और y 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये 2D ग्राफ में शो होगा। अगर इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, हम उसको 3 वेरिएबल की तरफ मूव करते हैं, x y और z। इसको बोलते हैं 2D क्वाड्रेंट, और एक होता है 3D क्वाड्रेंट। वो कुछ इस तरह का, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया हमारा z एक्सिस। And plugging in different values into the unknown x to find out the equations or mod does not values does to the values of y. We can line up a system of equation. अब यहाँ पे ये देखें ना, अब लेट सपोज x को मैं रखता हूँ 0, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 1। x को मैं रखता हूँ 1, और y हमारे पास क्या आ जाएगा 2। x को मैं रखता हूँ अगर 2, y हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है। जब हम x को 1 रखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा आंसर 5, और जब हम x को रखेंगे 2 तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9।
अब ये हमारे पास इस ग्राफ को हम ड्रा करें ना, वो ग्राफ किस तरह का आ जाएगा। एक्स को हम 0 रखेंगे तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1, ये इसी साइड पे, ठीक हो गया। अच्छा, एक्स को हम 1 रखेंगे, वाई को हमारे पास 5 आ जाएगा, वो कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। सेम जब हम एक्स को 2 रखेंगे वो इधर होगा और वाई हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से चलते जाए ना, ये हमारे पास जब x को 0 रखा था, y क्या था 1 था ना, ये यहाँ से हम मूव करते जाएं, ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है ना। और जब हम उसको नेगेटिव वैल्यूज देंगे वो कुछ इस तरफ नेगेटिव सेंस में चलेगा, यानी कि दोनों साइड पे दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि डिफरेंट वैल्यूज पुट की तो डिफरेंट इसका बिहेवियर है, या जब इसको हमने ग्राफ में शो किया तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास हासिल हुई और वो 2 डायमेंशन थी। जब हमने उसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो वो पॉजिटिव सेंस में मूव किया, उसने पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मूव किया। जब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में मूव करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वी कैन लाइन अप ऐसे। अब इन इक्वेशंस को देखें, इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को आपस में लाइन से मिला दे तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई फॉर 2 और मोर। अब सेम इसी तरह हम यानी कि ये तो था हमारे पास एक वेरिएबल था अननोन, मतलब y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, एक को वैल्यू पुट की और एक दूसरे वैल्यू को निकाल ली। अब यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि क्या लीनियर इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जिसके एक से ज़्यादा या तो मतलब 2 या उससे ज़्यादा भी हों। बिल्कुल हो सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले ही स्लाइड में मेंशन किया हुआ a1x1 प्लस a2x2 एंड अप टू सो ऑन an xn। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, तो डिफरेंट हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं, हम इनको डिफरेंट तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना के उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, मैं आपके आगे लिखने लगा हूँ, y इज इक्वल टू 4x1 प्लस 4x1 plus 5x2. 5x2, the columns of the values can be taken as a column vector of the output vector from the equations. The two columns of the floating point. अब यहाँ पे देखें ज़ाहिर सी बात है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा, वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 4, 5 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास ये a1 वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये a2, या इसको अगर इसके हिसाब से चलें तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये और हमारे पास y हो गया, ठीक हो गया। वो यही चीज़ कहना चाह रहा है, दी कॉलम ऑफ y वैल्यूज कैन बी टेकन एज ए कॉलम वेक्टर ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द इक्वेशन, द टू कॉलम्स ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ऑफ द डाटा कॉलम। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टर को एक मैट्रिक्स में लिख दिया, are taken as the matrices. The two unknown values x1 and x2 can be taken as the coefficients of the equations together from the vector unknown by the two sums. वही बात है कि भी इस इक्वेशन से हमने क्या किया, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया। कोएफिशिएंट ये वाले थे, अगर इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स मिक्स करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हम इनको इसी रो ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ से x1 और x2 की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई पॉइंट समझ ना आया हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद एक और चीज़ भी है लीनियर अलजेब्रा के साथ न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा हमारे पास क्या होता है बेसिकली, न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा यानी कि इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होती हैं और इनको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है और इसको हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं और वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। किसी भी इक्वेशन को द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा इन कंप्यूटर इज ऑफनली कॉल्ड न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। अब देखें ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जब लाखों में इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन, उससे हमारे पास m क्रॉस n का ऑर्डर, अब पता नहीं कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनता है। उसको जब हम बाई कंप्यूटर या बाई कोडिंग या बाई एनी टूल लाइक एज मैटलैब, लाइक एज C++, लाइक एनी अदर टूल, हम कोई हेल्प लेके उसको सॉल्व करेंगे बाई कंप्यूटेशनली, तो वो किस में आता है, हमारे
हमारा न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा में आता है। इट इज़ मोर देन जस्ट द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस इन कोड लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो include the careful handling of the problems of the applied mathematics, such as working with the limited floating point portions of the digital computers। हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो इतनी टिपिकल होंगी, हमने उनको कंप्यूटर की मदद से जब सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर हम कोडिंग लगाएंगे और फ्लोटिंग पॉइंट्स बना के उनके डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स की मदद से हम मैट्रिसेस बनाएंगे, मैट्रिसेस बना के उसको सॉल्व आउट करेंगे। और सॉल्व आउट करने के लिए या तो हम बाई हैंड करेंगे, अगर वो इतनी टिपिकल हैं तो हम उनके लिए कंप्यूटर और कोई मैटलैब टूल या कोई एनी अदर टूल यूज़ करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपको कोई इशू हो आप हमारे साथ मेल करके या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें एंड कमेंट्स भी करें। एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।